Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Today is our 29th lecture, and in this lecture we will learn about counters and registers. In the previous chapter we have seen what is sequential logic and what are the sequential circuits. After that we have discussed latches, then flip-flops, advanced form of latches. And after studying these devices, digital devices, we see their analysis and design procedure. In today's lecture, we are going to start a new chapter which discuss the sequential circuit, registers and counters. A clock sequential circuit consists of a group of flip-flops and combinational gates. The flip-flops are essential because in their absence, the circuit reduced to a purely combinational circuit. A circuit with flip-flop is considered as a sequential circuit even in the absence of combinational gates. Circuits that include flip-flop are usually classified by the function they perform rather by the name of the sequential circuit. Two such circuits are registers and counters. A register is a group of flip-flops, each one of which shares a common clock and is capable of storing one bit of information. An n-bit register consists of a group of n flip-flops capable of storing n bits of binary information. In addition to flip-flops, a register may have combinational gates that perform certain data processing tasks. In its broadest definition, a register consists of a group of flip-flops together with the gate that effect their operation. The flip-flop holds the binary information and the gates determine how the information is transferred into the register. A counter is essentially a register that goes through a predetermined sequence of binary states. The gates in the counter are connected in such a way as to produce the prescribed sequence of states. Although counters are special type of registers, it is common to differentiate them by giving them a different name. Various types of registers are available commercially. The simplest register is one that consists of only flip-flop without any gate. Figure in the next slide shows a register constructed with 4 D-type flip-flop to form a 4-bit data storage. Here it is. The common clock input triggers all flip-flop on the positive edge of each pulse, and the binary data available at the 4 inputs are transferred into the register. The value I0, I1, I2, I3 immediately before the clock edge determines the value of A0, A1, A2 and A3 after the clock edge. The four outputs can be sampled at any time to obtain the binary information stored in the register. The input clear B goes to active low reset input of all 4 flip-flops. When this input goes to 0, all flip-flops are reset asynchronously. The clear B input is useful for clearing the register to all zeros prior to its clocked operation. The R input must be maintained at logic 1, that is deasserted during the normal clocked operation. Note that depending on the flip-flops, either clear B, reset or reset B can be used to indicate the transfer of registers to an all zero state.
लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर सीक्वेंशियल लॉजिक को डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, लैचेस क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, और फिर हमने इनका एनालिसिस देखा था कि हम एक सर्किट हमें गिवन हो तो हम उसका कैसे एनालिसिस करके उसकी स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल और स्टेट इक्वेशंस बना सकते हैं। और फिर हमने देखा था कि कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से कैसे स्टेट टेबल या ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम स्टेट इक्वेशंस निकालेंगे, उनको सिंप्लीफाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। स्टेट डायग्राम में अगर स्टेट रिडक्शन होती है तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकती तो उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि हम कैसे उन स्टेट इक्वेशन से या स्टेट डायग्राम से स्टेट इक्वेशन से हम कैसे लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये सारा डिजाइन प्रोसीजर आता था। डिजाइन प्रोसीजर में हम लोगों ने सारा डिटेल में देखा था कि हम कैसे सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो हम उसका सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6, वो रजिस्टर्स और काउंटर्स के ऊपर है। पहले हम रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर्स क्या हैं, किस तरह की इनकी एप्लीकेशंस हैं, कि क्या इनके यूजेज हैं, और फिर बाद में हम इन काउंटर्स को देखेंगे कि काउंटर्स किस तरह से काम करते हैं, इन काउंटर्स की एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से डिजाइन प्रोसीजर, इनका सारा एनालिसिस वगैरह देखेंगे। सबसे पहली बात कि अगर एक सर्किट के अंदर फ्लिप फ्लॉप है तो वो सीक्वेंशियल सर्किट है। अगर आपके पास उस सीक्वेंशियल सर्किट में कोई कॉम्बिनेशनल गेट्स नहीं यूज हो रहे तो भी वो सीक्वेंशियल सर्किट ही होगा। मगर अगर एक सर्किट के अंदर फ्लिप फ्लॉप है ही नहीं है तो आप उसको सीक्वेंशियल सर्किट कह ही नहीं सकते, वो प्योरली कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट के लिए फ्लिप फ्लॉप का होना जरूरी है। हाँ, फ्लिप फ्लॉप के साथ हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को, कॉम्बिनेशनल लॉजिक को भी कंबाइन कर सकते हैं तो भी वो सीक्वेंशियल सर्किट ही रहेगा। अब दो सीक्वेंशियल सर्किट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, रजिस्टर्स और काउंटर्स हैं। फ्लिप फ्लॉप्स, ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, ये उन फ्लिप फ्लॉप्स के नाम से नहीं पहचाने जाते हैं, उस काम से पहचाने जाते हैं जो सर्किट कॉम परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह काउंटर्स और रजिस्टर्स है, एक रजिस्टर स्टोरेज के लिए होता है, काउंटर जो है वो काउंट कर रहा होता है, बाइनरी स्टेट्स को काउंट करता है। तो रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप विच each one of which shares a common clock and is capable of storing 1 bit of information। रजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर आप 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, और जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन सारों की क्लॉक इनपुट कॉमन होगी। An n-bit register consists of n groups of n flip-flops capable of storing n bits of information। जो अगर एक सर्किट के अंदर n flip-flops हैं, इसका मतलब है कि वो n bits आप n bits की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ठीक है, n bits की इंफॉर्मेशन वो अपने पास स्टोर कर सकता है। इस तरह अगर 4 flip-flops हैं तो वो 4 बिट्स की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर सकता है। ठीक है, इन ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन अ रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स टुगेदर विद गेट्स दैट इफेक्ट देयर ऑपरेशन। अगर हम ब्रॉडेस्ट टर्म में देखें तो एक रजिस्टर के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स भी हो, फ्लिप फ्लॉप्स तो होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, मगर इनके अंदर कॉम्बिनेशनल लॉजिक को भी हम साथ अटैच करके इनके ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उस कॉम्बिनेशनल लॉजिक से इसके जो फ्लिप फ्लॉप का परफॉर्म करने का जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाता है। A counter is essentially a register that goes through a predetermined sequence of binary states. The gates in the counter are connected in such a way as to produce the prescribed sequence of states. काउंटर एक रजिस्टर की ही आप काउंटर को एक रजिस्टर ही कह सकते हैं, मगर ये जो काउंटर है ये हमारे पास प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस जो होते हैं, जो पहले से डिटरमिन्ड हम लोगों ने बाइनरी सीक्वेंस होते हैं, उन सारे सीक्वेंसेस से गो थ्रू होता है।
ठीक है, जैसे काउंटर काउंट करेगा 0 1 2 3 4, ये एक सर्किट है जो 0 1 2 3 4 जिसकी आउटपुट 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये आ रही है, ये काउंटर होगा। ठीक है, ऑल्दो कि इसको भी ये एक रजिस्टर ही होता है, मगर क्योंकि इसका फंक्शन डिफरेंट है तो हम इसको इसके फंक्शन के नाम से इसको पहचानते हैं, हम इसको फंक्शन के नाम इसको देते हैं और इस वजह से इसको हम काउंटर कहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर अवेलेबल कमर्शियली, द सिंपलेस्ट इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फ्लिप फ्लॉप विदाउट एनी गेट। हमारे पास कमर्शियली बहुत सारे रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, हम वन बाय वन देखेंगे, मगर जो सिंपलेस्ट रजिस्टर है उसमें सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप होगा। ठीक है, और उसमें कोई कॉम्बिनेशनल गेट नहीं होगा, एक बस फ्लिप फ्लॉप होगा और वो एक बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में एक रजिस्टर दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप से बने हुए हैं और 4 बिट डेटा स्टोरेज रजिस्टर है, ये 4 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। अब आप इसमें देख रहे हो ये कॉमन क्लॉक है, सारों की क्लॉक सारों की कॉमन है और इसी तरह जो रीसेट है वो भी सारों के कॉमन है। रीसेट का मतलब है कि आप इस सारे रजिस्टर को 0000 कर दो। ठीक है, जो इसके अंदर जो भी बिट इंफॉर्मेशन थी वो जाया हो जाएगी, रीसेट होकर 0000 आ जाएगी। जब एक क्लॉक एज आएगा तो ये I0, I1, I2, I3 जो है इस रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के ऊपर आपको A0, A1, A2, A3 के ऊपर ये I0, I1, I2 और I3 मिल रही होंगी। ठीक है, ये A0 T+1 इज इक्वल टू I0, इसकी जो इक्वेशन है वो ये बन रही है। इसी तरह A1 T+1 इज इक्वल टू I1 ऑफ T। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि हम इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं इसकी इक्वेशंस आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है रजिस्टर विथ पैरेलल लोड। अब रजिस्टर विथ पैरेलल लोड आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ डिजिटल सिस्टम। ठीक है, पैरेलल लोड के साथ जो रजिस्टर्स हैं ये किसी भी डिजिटल सिस्टम के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम हैव मास्टर क्लॉक जनरेटर दैट सप्लाइज अ कंटिन्यूअस ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस। द पल्सेस आर अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर इन द सिस्टम। जो सिंक्रोनस डिजिटल सिस्टम होते हैं इसके अंदर एक मास्टर क्लॉक जनरेटर होता है, जिसका काम ये होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली आपको क्लॉक पल्सेस दे रहा होता है, क्लॉक के सिग्नल्स दे रहा होता है। ठीक है, ये सिग्नल्स सारे फ्लिप फ्लॉप्स और सारे रजिस्टर्स को, सिस्टम के अंदर जो कनेक्टेड फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स हैं उन सारों को ये क्लॉक पल्सेस जा रही होती हैं। A separate control signal must be used to decide which register operation will execute at each clock pulse. अब हमें एक कंट्रोल सिग्नल की ज़रूरत होती है ताकि हम बता सकें सिस्टम को कि क्योंकि क्लॉक पल्सेस तो सारे कंपोनेंट्स को जा रही हैं, अब कौन सा कंपोनेंट काम करेगा और कौन सा ऑन स्टेट में होगा, कौन सा ऑफ स्टेट में होगा, ये चीज पर सिस्टम को बताने के लिए हमें एक कंट्रोल सिग्नल की जरूरत होती है। ठीक है, इस कंट्रोल सिग्नल के थ्रू हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को ऑन या ऑफ रख सकते हैं। क्लॉक पल्सेस क्योंकि कॉमन है तो उसमें हम नहीं कर सकते, हमें कंट्रोल सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। Transfer of new information into register is referred to as loading and or updating the register. If all bits of registers are loaded simultaneously with a common clock pulse, we say that loading is done in parallel. अब जब आप एक बिट की इंफॉर्मेशन से, जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर में, ठीक है, जब हम इंफॉर्मेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं तो इस चीज को हम लोडिंग या अपडेटिंग का नाम देते हैं कि आप रजिस्टर में वैल्यू लोड कर रहे हो या रजिस्टर की वैल्यू को अपडेट कर रहे हो। और अगर सारे बिट एक रजिस्टर के जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको आप इकट्ठा साइमल्टेनियसली एक ही दफा में लोड करवाते हो एक ही क्लॉक पल्स के, एक ही क्लॉक सिग्नल के अंदर, तो हम कहते हैं कि जो लोडिंग इज डन इन पैरेलल, तो लोडिंग पैरेलल हुई है। ठीक है, सारे रजिस्टर्स एक ही साथ अपडेट हुए हैं या अपलोड हुए हैं, तो इस चीज को आप
लोड पैरेलल लोडिंग का नाम देते हो। अच्छा, अब ये एक रजिस्टर है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो ये क्लॉक सबकी कॉमन है। हमारे पास ये लोड का एक कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है, I0, I1, I2 और I3 ये इनपुट लाइंस हैं। लोड में आप देखते हो नॉट और नॉट आ रहा है, ठीक है। अब नॉट में जब होगा, अच्छा, अब आप अगर ये देखो, ये जो दो एंड गेट्स और एक और गेट का एक कॉम्बिनेशन है, ये एक तरह का 2 चैनल मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। या तो आपके पास प्रीवियस वैल्यू ही रजिस्टर में रहे आएगी वापस, या नई वैल्यू आपने अपडेट करनी है। नई वैल्यू I0 है, प्रीवियस वैल्यू A0 है, ठीक है। अब ये लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। लोड कर वो कंट्रोल सिग्नल है जो बताएगा कि या तो आपने इसमें नई वैल्यू अपडेट करनी है या प्रीवियस वैल्यू को ही इसमें स्टोर करना है। अच्छा, तो अब ये जो लोड का सिग्नल है जब ये ज़ीरो होगा, ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी उसको देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से पेन ऑन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जब 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको ये आपके पास 0 हो, ये आपके पास सॉरी 1 है, नहीं ये 0 है, ये कनेक्टेड है ना, ये वाला 1 है, ये आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब है कि यहाँ पे जो भी होगा वो आपको आउटपुट पे 0 ही मिलेगा। एंड गेट की हमें प्रॉपर्टी को पता है कि अगर एक गेट पे 0 हो और एक पे कुछ भी वैल्यू हो तो आउटपुट पे आपको 0 ही मिलेगा, और अगर यहाँ पे 1 हो तो आउटपुट पे आपको वो मिल जाएगा जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो हम यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने लोड को यूज़ किया है, हमने मल्टीप्लेक्सर, तो इस तरह से हमने जो लोड का कंट्रोल सिग्नल है जब वो 0 होगा, ठीक है, तो आपके पास प्रीवियस वैल्यू ही दोबारा इनपुट पे आ रही होगी और वही स्टोर रहेगी। मींस जब लोड का सिग्नल 0 है तो आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स की कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी स्टेट्स आपके पास नो चेंज कंडीशन पे होंगी। और जब लोड आपके पास 1 होगा तो आपके पास जो I0 है, ठीक है, I0, I1, I2 और I3 ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू रजिस्टर में वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। तो अब ये एक ही कंट्रोल सिग्नल पे चारों वैल्यूज रजिस्टर में स्टोर हो रही हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लोडिंग, ठीक है। तो रजिस्टर विद पैरेलल लोडिंग का मतलब ये है कि एक ही आप कंट्रोल सिग्नल के थ्रू एक कंपोनेंट को कंट्रोल करते हो, या उसमें आपने अपडेट करना है या उसको आपने प्रीवियस स्टेट पे ही छोड़ना है, तो ये कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन कर रहा है। और एक ही क्लॉक साइकिल पे सारी वैल्यूज आपके पास स्टोर हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, तो इस चीज़ को आप लोग कंट्रोल रजिस्टर विद पैरेलल लोड कहते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन है जो मैंने आपको बताया। अ क्लॉक एज अप्लाइड to the C input of the clock register will load all 4 inputs in parallel. In this configuration, if the contents of the register must be left unchanged, the input must be held constant and the clock must be inhibited from the circuit. ठीक है, तो in that the first case the data bus driving the register would be unavailable for other traffic. In the second case, the clock can be inhibited from reaching the circuit by controlling the clock input signal with enabling gate. अच्छा, अब इसमें दो तरीके थे पैरेलल लोड में, ठीक है। एक तो ये कि हम किसी तरह इस क्लॉक को रोक दें, ठीक है। अगर हम क्लॉक को रोकते हैं तो क्लॉक का जब सिग्नल इस पे नहीं आएगा तो वैल्यू अपडेट नहीं होगी, वही प्रीवियस वैल्यू ही रहेगी। मगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। इन द फर्स्ट केस डेटा बस ड्राइविंग द रजिस्टर वुड बी
अनअवेलेबल फॉर अदर ट्रैफिक। जो डेटा बस होती है हमारे पास, जो जिसके साथ सारे रजिस्टर्स आपके पास कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो बाकी रजिस्टर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाए, उनके लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम क्लॉक को कह रहे हैं। और दूसरा, क्लॉक सिग्नल विथ एनेबलिंग गेट जो है वो क्लॉक को हम रोक सकते हैं। सॉरी, जो फर्स्ट केस है, ठीक है, अगर हम डेटा बस के थ्रू कंट्रोल करते हैं रजिस्टर को, तो डेटा बस बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं होगी, एक स्पेसिफिक रजिस्टर पे ही रहेगी, ठीक है। और अगर हम क्लॉक को कंट्रोल करते हैं तो क्लॉक का ही होता है कि क्लॉक का पाथ, क्लॉक को अगर आप चेंज करते हो तो ये एक इल एडवाइज्ड मैनर होता है, क्योंकि सारे लॉजिक जो है वो क्लॉक पल्सेस के साथ आ रहे होते हैं। द इंसर्शन ऑफ लॉजिक गेट्स प्रोड्यूसेस अनइवन प्रोपिगेशन डिलेज बिटवीन मास्टर क्लॉक एंड द इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो जो अनइवन प्रोपिगेशन डिलेज की वजह से आप क्लॉक के सिग्नल में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने हल ये निकाला था कि हम एक कंट्रोल सिग्नल या एक कंट्रोल बस इंट्रोड्यूस करवा दें जो कि हर रजिस्टर से कनेक्टेड हो, और हम उस कंट्रोल सिग्नल के थ्रू या तो हम वैल्यूज़ को अपडेट करें या हम प्रीवियस स्टेट में ही रखें, नो चेंज रखें, ठीक है। तो ये थर्ड प्रपोज मेथड था वो यूज़ हुआ था। जो फर्स्ट टू मेथड थे कि हम डेटा बस से अगर कंट्रोल करते हैं सारे रजिस्टर्स को, तो उसमें अगर एक रजिस्टर को आप अपडेट कर रहे हो, बाकियों को नहीं कर रहे हो, बाकियों की वैल्यूज डिफरेंट है, तो डेटा बस एक रजिस्टर के लिए एंगेज हो जाएगी, बाकियों को वो अनअवेलेबल होगी। क्लॉक को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो क्लॉक से फिर अनइवन प्रोपिगेशन डिलेज आने का डर होता है, ठीक है। तो हम ये कंट्रोल सिग्नल कर लेते हैं और क्लॉक को उसी तरह सारी तरफ रहने देते हैं। अगला जो रजिस्टर है जिस पे हम बात करेंगे वो शिफ्ट रजिस्टर है। अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन हेल्ड इन ईच सेल to its neighboring cell in a selected direction is called a shift register. ऐसा रजिस्टर जो इंफॉर्मेशन को अपने नेबरिंग सेल के पे शिफ्ट करे, ऐसे रजिस्टर को हम लोग शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। और जो शिफ्टिंग की डायरेक्शन होती है वो सिलेक्टेड डायरेक्शन होती है कि वो या राइट पे शिफ्ट करेगा या लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। ऐसे रजिस्टर को आप एक शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास 0 1 1 0 है, इससे मैं लेफ्ट शिफ्ट करवा रहा हूँ, तो ठीक है, तो मेरे पास ये शिफ्टिंग के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा 0 0 1 1। अब एक बिट जो ये इंफॉर्मेशन थी 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, और यहाँ से इनपुट पे 0 आ रहा है, या अगर ये इस तरह रोटेट पे लगा हुआ तो ये रोटेट होके इधर आ जाएगा। इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करने वाले रजिस्टर्स को हम शिफ्ट रजिस्टर्स कहते हैं। द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन कैस्केडेड विद द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। इस कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमारे पास एक नॉर्मल जो बेसिक आइडिया आता है वो यही है कि हम फ्लिप फ्लॉप्स को कैस्केडेडली कनेक्ट कर दें। हर फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे हो, ठीक है। ऑल फ्लिप फ्लॉप्स रिसीव कॉमन क्लॉक पल्सेस विच एक्टिवेट द शिफ्ट ऑफ डेटा फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। जितने भी हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो एक कॉमन क्लॉक से कनेक्टेड होते हैं, जो कि ये बताएंगे कि कब हम लोग एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे डेटा को शिफ्ट कर रहे हैं एक फ्लिप फ्लॉप से। जिस तरह एक ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जब भी एक क्लॉक पल्स आएगा जो सीरियल डेटा इनपुट से आपके पास आ रहा है वो नेक्स्ट पे शिफ्ट होता जाएगा। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल थी 0 1 1 0। जब एक क्लॉक एल्स अकर हुआ तो ये 0 इधर आ गया, ये 1 1 इधर आ गया, ठीक है, ये वाला 0 इधर आ गया, और यहां से जो सीरियली इनपुट डेटा आ रहा है, या वो 0 है या वो 1 है, जो भी है ऐसा ही डेटा है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्लॉक पे फिर ये वाला डेटा इधर आएगा, ये वाला आगे मूव होता जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास रजिस्टर काम कर रहा है। तो ऐसे रजिस्टर को हम लोगों ने सीरियल शिफ्ट रजिस्टर का नाम
दिया है या शिफ्ट रजिस्टर का नाम देते हैं। ठीक है। सीरियल ट्रांसफर the data path of a digital system is said to operate in serial mode when information is transferred and manipulated one bit at a time। जब डेटा पाथ के ऊपर वन बिट एट अ टाइम, तो अगर डेटा पाथ पे वन बिट एट अ टाइम आपके पास रजिस्टर में शिफ्ट हो रही है तो उसको आप सीरियल ट्रांसफर कहते हैं। सीरियल ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रजिस्टर ए टू बी इज डन विथ शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सोर्स रजिस्टर, द इंफॉर्मेशन इन रजिस्टर ए इज मेड टू सर्कुलेट by connecting the serial output of its serial input। इंफॉर्मेशन लॉस को सेव करने के लिए नेक्स्ट उसमें स्लाइड में फिगर है, उसके लिए जिक्र हो रहा है, उसके लिए रजिस्टर ए को यूज़ हो रहा है कि इंफॉर्मेशन लॉस को बचाने के लिए हम जो फर्स्ट वन रजिस्टर है उसकी आउटपुट को दोबारा इनपुट पे भेज रहे होते हैं ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। ठीक है। द शिफ्ट कंट्रोल, उसके अंदर मैं नेक्स्ट फिगर पे चला जाता हूँ ताकि इसमें क्लियर हो जाए। ये जो शिफ्ट कंट्रोल है, ठीक है, ये हमने क्लॉक के साथ एंड किया हुआ है, हालांकि ये प्रिस्क्राइब्ड वे नहीं है, मगर आप समझाने के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। जो आपको पता है कि अगर हम क्लॉक को के साथ करेंगे तो आपके पास अनइवन प्रोपिगेशन डिलेज अकर होनी शुरू हो जाती हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं होती हैं। मगर समझाने के लिए फिलहाल शिफ्ट कंट्रोल को हम क्लॉक सिग्नल के साथ दे रहे हैं। जब ये शिफ्ट कंट्रोल ऑन होगा तब ये आपके पास क्लॉक पल्सेस इन शिफ्ट रजिस्टर्स को पहुंचेंगी और वन बाय बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है। अब ये बात यहाँ पे हो रही थी कि इंफॉर्मेशन लॉस को बचाने के लिए हमने दोबारा इसकी आउटपुट को सीरियल आउटपुट को सीरियल इनपुट पे कर दिया और सीरियली डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मींस वन बिट एट अ टाइम आपके पास नेक्स्ट शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में देखूं तो मेरे पास ये जो शिफ्ट रजिस्टर ए और शिफ्ट रजिस्टर बी इनिशियल वैल्यू इनमें ये हैं। ठीक है। जब जब हमने ये शिफ्ट क्लॉक ऑन किया तो आपके पास शिफ्ट कंट्रोल ऑन किया तो आपके पास ये 4 पल्सेस गई जब तक कि शिफ्ट कंट्रोल ऑफ नहीं हुआ। ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल ऑन और ऑफ में हमने ये T1, T2, T3, T4 मींस हमने 4 बिट इंफॉर्मेशन शिफ्ट करनी है, 4 क्लॉक पल्सेस हमने उसको भेजी हैं। अब ये कैसे काम कर रही हैं? अब T1 पे क्या होगा, ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया और क्योंकि ये वाला दोबारा इनपुट पे आ रहा था तो ये वाला 1 आपके पास दोबारा इधर आ गया। ठीक है। और ये वाला 1 आपके पास इधर भी आ गया और ये वाला 1 आपके पास इधर भी आ गया। ठीक है। तो ये वाला आपके पास इधर चला गया, ये आपके पास इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये 0 आपको आउटपुट के ऊपर मिल रहा है। एट T1 आपके पास 0 आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है। एट T2 दोबारा शिफ्टिंग हो रही है, ये 1 ये और ये वाला 1 आपके पास इधर आ गया और ये इधर भी चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट पे आपको 1 मिल रहा है। एट T4 आपको फिर 0 मिलेगा और फिर यहाँ पे आपको एक 1 और 0 मिल रहा है। ठीक है। तो 0 0 1 0 ये 4 बिट की इंफॉर्मेशन आपके पास, ये 1 0 1 1 जो है आपके पास नेक्स्ट रजिस्टर में शिफ्ट हो गया है। ठीक है। और आपके पास जो इस शिफ्ट में रजिस्टर में कंटेंट्स है 0 1 0 0 वो आपको सीरियली आउटपुट पे मिल गए हैं। तो ये एक सीरियल ट्रांसफर की एग्जांपल थी कि कैसे हमारे पास इस डायग्राम को देखते हुए हमने एक रजिस्टर के कंटेंट्स दूसरे रजिस्टर में शिफ्ट किए हैं और इस रजिस्टर के कंटेंट्स हमारे पास आउटपुट के ऊपर मिल गए हैं। Serial addition. Operation in digital computers are usually done in parallel because it is a faster mode of operation. नॉर्मली डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर हम पैरेलल में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन जो है वो सीरियल ऑपरेशन से बहुत तेज होते हैं। Serial operations are slow because a data path operation takes several clock cycles, but serial operations have the advantage of requiring fewer hardware components. Serial operations slow होते हैं क्योंकि एक ऑपरेशन परफॉर्म करने में उन्हें काफ़ी सारे क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड होते हैं, मगर जो सीरियल ऑपरेशन है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और वो एडवांटेजेस ये हैं कि सीरियल
ऑपरेशन के अंदर आपके पास जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कम लगते हैं। इन VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो आईसीज वगैरह आते हैं, दे रिक्वायर लेस सिलिकॉन एरिया ऑन अ चिप। तो सर्किट जो आईसीज के ऊपर आपके पास अब एक सीरियल एडिशन का एक आईसी है, अगर आप उसको सीरियली एडिशन कर रहे हो तो उस आईसी के अंदर उसकी कंपोनेंट कम होने की वजह से स्पेस बहुत कम रिक्वायर्ड होगी, बजाय इसके कि आप पैरेलली बनाओ। पैरेलल में आपके पास फास्टर होगा मगर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट द सीरियल मोड ऑफ ऑपरेशन वी प्रेजेंट अ डिज़ाइन ऑफ सीरियल एडर। ठीक है, इस सीरियल मोड ऑफ ऑपरेशन को दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक सीरियल एडर की एग्जांपल लेते हैं और वो ये है। अब इसमें आप देखें हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर ए और बी, दो रजिस्टर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं आपस में। ठीक है, इसमें शिफ्ट कंट्रोल भी है आपके पास, सीरियल इनपुट भी है। सम आपके पास वापस आ रहा है, कैरी हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप पे भेजा हुआ है। ठीक है, और ये क्लियर है, और ये भी क्लॉक पल्सेस इसी तरह आपके पास जो क्लॉक का कंट्रोल है वो ये एंड गेट से करके कैरी जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अगर हम देखें ये इस फिगर को ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ द सीरियल एडर इज एज फॉलोज। इनिशियली रजिस्टर ए होल्ड्स द ऑगमेंट and register B holds the addend and the carry flip flop is clear to 0। ठीक है, इनिशियली कैरी फ्लिप फ्लॉप कैरी में 0 है। ठीक है, ये D और Q उल्टे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जिस तरह एक 1 0 1 1 और 1 1 1 0 ये इंफॉर्मेशन मैंने इसमें रख दी है। इन दोनों को मैंने आपस में ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों 4 बिट्स अगर मुझे पैरेलल में बनाना है तो मुझे 4 बिट एडर चाहिए, मगर जस्ट मैं एक सिंगल फुल एडर के साथ और 2 सीरियल रजिस्टर्स के साथ ये 4 बिट एडर बना लूँगा। 4 बिट क्या, मैं अगर 8 बिट भी बनाना चाहूँ तो मुझे ये एक फुल एडर ही रहेगा, मुझे यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, और कैरी को इनिशियली हमने 0 कर दिया। द आउटपुट S0 ऑफ A and B provides a pair of significant bit for the full adder at X, Y। आउटपुट Q ऑफ द फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड्स द इनपुट कैरी एट Z। ठीक है, जो हाँ जी S0 A और S0 B ये इनपुट आ रही हैं XY के लिए, और ये जो D फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है ये कैरी इन Z की तरफ जा रही है, और S सम आउटपुट है, C कैरी आउटपुट है। ठीक है, द शिफ्ट कंट्रोल enables both register of the carry flip flop so that the next clock pulse both registers are shifted once to the right and the sum bit from S enters to the leftmost flip flop of A and output carry is transferred into flip flop Q। अगर अब आप देखें, ठीक है, ये शिफ्ट कंट्रोल है, ये SI है। ठीक, सम दोबारा इनपुट पे आ रहा है हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस को बचाने के लिए। ठीक है, ये फिक्स है और ये आपके पास शिफ्ट कंट्रोल और ये सीरियल इनपुट आ रही है। ठीक है, आपने इसको इस नंबर में ऐड करना है। तो जब एक क्लॉक पल्स आया, अब यहाँ से एक बिट इंफॉर्मेशन इधर आई, यहाँ से एक बिट इंफॉर्मेशन इधर आई, 1 0 आपस में ऐड हुए, सम में 1 आया। ठीक है, कैरी में 0 आया, यानी नेक्स्ट के लिए कैरी इन 0 है, ये सम वापस इधर आ गया। ये देख लीजिएगा, ये अनचेंज रहेगा। यहाँ पे आप सीरियली इनपुट जितने नंबर भेजते जाओगे वो ऐड होते जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सॉरी मैंने पहले कहा था कि हमें 8 बिट रजिस्टर चाहिए होंगे, हम इन 4 बिट रजिस्टर के साथ, मगर ऑगमेंट हमारे पास फिर 4 बिट का ही रहेगा, ऑगमेंट हमारे पास 8 बिट का नहीं हो सकेगा अगर हम 4 बिट के रजिस्टर्स ले रहे हैं। ऑगमेंट को अगर 8 बिट का रखना तो हमें 8 बिट लेना है, मगर अगर हम 4 बिट एडर भी बना रहे हैं तो हम यहाँ पे नंबर जो स्टोर करेंगे वो फिक्स होगा। यहाँ पे हम सीरियली जो भी नंबर भेजते जाएंगे वो इससे ऐड होकर आपके पास रिजल्ट देता जाएगा, मगर अगेन ये स्लो होगा, इसको क्लॉक पल्सेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। फॉर ईच सक्सीडिंग क्लॉक पल्स अ न्यू some bit is transferred to A, a new carry is transferred to Q, both registers are shifted once to the right and the process continues until shift control is disabled। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक आपके पास शिफ्ट कंट्रोल एनेबल रहेगा। ठीक है, 1 बाय 1 हर क्लॉक पल्स के ऊपर एक एक नंबर आगे आता जाएगा,
वो ऐड होता जाएगा और ऐड होके वापस इसमें स्टोर होता जा रहा है, ठीक है, एसआई रजिस्टर के अंदर आपके पास स्टोर होता जा रहा है। Thus the addition is completed by passing each pair of bits together with the previous carry through a single full adder circuit and transferring the sum one bit at a time into register A। ठीक है, सम को हम लोग रजिस्टर ए में सेव भी करा रहे हैं, जो सम आपके पास रिजल्ट आएगा वो रजिस्टर ए के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। मसला आपने 4 बिट ऐड किए हैं, आपने 4 पल्सेस शिफ्ट कंट्रोल से भेजी हैं, वो सम जो है आपको 4 क्लॉक पल्सेस के बाद आपको सम एस जो रजिस्टर ए है इसके अंदर आपको सम मिल जाएगा, कैरी आउटपुट आपको मिल जाएगी, जो भी उस वक्त कैरी जनरेट हो रही होगी वो डी में सेव भी होगा आपके पास, तो यहाँ पे आपको कैरी मिल रहा होगा और ये सम आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। टू शो सीरियल ऑपरेशन कैन बी डिजाइन बाय मीन ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट प्रोसीजर वी विल रीडिजाइन द सीरियल एडर विद यूज ऑफ स्टेट टेबल। हम इस सीरियल एडर को स्टेट टेबल के साथ कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ये इनपुट्स हैं, ये नेक्स्ट स्टेट है, ये सम है और ये फ्लिप फ्लॉप्स आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 0 1 1 1 1 है, ठीक है। इनपुट्स आपके पास क्या है, एक्स वाई, जो फुल एडर की इनपुट्स हैं, ये फुल एडर की इनपुट्स थी एक्स वाई। अब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, डी फ्लिप फ्लॉप की या जे के फ्लिप फ्लॉप की क्यू होगी और आउटपुट आपके पास सम आ रहा है, ठीक है। अब इनपुट क्या हो रही है जी, 0 + 0 सम आपके पास 0 आएगा, 0 + 1 सम आपके पास 1 आएगा, 1 + 0 1, इसी तरह ये सारा आ गया है, ठीक है। अब प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट को देखें, ठीक है। ऊपर अगर मैं जाऊं तो मुझे इस फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट देखनी है, ठीक है। तो वो मैं कैरी के हिसाब से देखूंगा कि अगर मेरे पास कैरी इन है और वो ऐड हो रहा है या कैरी आपके पास जनरेट हो रहा है तो आपके पास ये क्यू की आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मेरे पास मैंने फ्लिप फ्लॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से उनके देख लिया कि ट्रांजिशन के लिए जे क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब जे क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, क्यू की मेरे पास इक्वेशन ये आ रही है, सम की इक्वेशन आपके पास एक्स एक्स और वाई एक्स और क्यू होती है। तो अगर ये इसकी ऊपर वाले रजिस्टर को मैंने एक जे के फ्लिप फ्लॉप के साथ डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशंस बन रही हैं वो ये बन रही हैं, ठीक है। एक्स वाई हम लोगों को इनपुट जो आ रही हैं वो एक 2 सीरियल रजिस्टर से आ रही हैं, एक एक्स होगी एक की वाई होगी, ठीक है। अब जे के क्यू एक्स वाई है, के क्यू एक्स बार वाई बार आ रहा है, यानी एक्स प्लस वाई होल बार, तो एक्स नॉर लगा दिए या सॉरी नॉर लगा दिया है, एक्स और वाई के ऊपर नॉर लगा दिया है और ये आ रहा है, ठीक है। अब सम जो है वो एक्स वाई और ये क्यू का एक्स और आ रहा है, ठीक है, कैरी यहाँ से जो जनरेट हो रहा है, और क्लॉक जो है वो आपके पास अगेन शिफ्ट कंट्रोल से यूज हो रहा है और क्लियर आपके पास क्लियर कर रही है। तो एक जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम लोगों ने एक फुल सीरियल एडर बना लिया। अब ये एडर अगर आप देखें पैरेलल एडर्स के हिसाब से तो इसमें कंपैरेटिवली बहुत कम सर्किट कंपोनेंट्स यूज हुए हैं और इनका एडवांटेज यही है कि हम लोगों को कम सर्किट्स कम एलिमेंट से हम सर्किट बना सकते हैं। अब इसमें अगर सीरियल इनपुट मेरे पास 8 बिट की भी होती है तो मैं एक 4 बिट नंबर में 8 बिट ऐड कर सकता हूं, मगर मसला फिर यही होगा कि सम जो स्टोर हो रहा है वो भी सम फिर 8 बिट का होगा, तो मुझे ऊपर भी 8 बिट रजिस्टर्स ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर 8 बिट सम है तो 8 बिट रजिस्टर ही मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो बात वहीं आ जाती है कि जितने बिट्स का हमें बनाना है सिर्फ हमें उतने बिट्स का एक रजिस्टर लेना है, ठीक है, उसमें सीरियली डेटा ट्रांसफ़र करना है 1 बाय 1। आपके पास जो एडर है जो आगे एडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और वो एक ही सर्किट है, मल्टीपल बिट्स के लिए मल्टीपल सर्किट नहीं है, एक ही सर्किट है जो मल्टीपल बिट्स को आपस में ऐड कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर आगे देखेंगे कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इन पे काम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।